Hello, my dear students. What are you doing and how are you all? I hope you all are fine. So, from today onwards, we are going to start the chapter like we are doing in the classroom session. So, we will start the session with with the third chapter, that is citizenship. Now, you know very well, and if you read the name of the chapter, then definitely the question is there in your mind that what is citizen. Now, I hope you have your grandparents at your home. So, we are giving them a tag or we are giving them a title like senior citizen. So, in short, here also citizenship, ship matlab belong karna. So, if you are belonging to any particular country, so you are the citizen of that particular country. So, that is citizen. Okay, now in this chapter, we'll have to learn that how we can get the citizenship of a particular country, what are the rules for that, and everything. So, first of all, it was Sunday. Rajul and his family members were helping each other to clean the house. You must also be helping your family members when there is a work to be done. After having his tea, grandfather called Rajul and said, "A family is a social institution which was child comes into contact with first. The child learns about society for the very first time from the family. Therefore, a family is called the school of culture and personality development. It is the smallest unit of the society. A family also teaches us that we are mutually depend on each other. Each and every member of the family ought to help other. Society is based on the principle of cooperation and it begins with the family." Now say, it was a Sunday, so that was a day of Sunday. Rajul and his family members were helping each other clean the house. Okay, राजुल जो है वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उसको क्या कर रहे हैं, घर जो क्लीन कर रहे हैं, अपना हाउस है उसको क्लीन करने में उसकी मदद कर रहे हैं. You must also be helping your family members when there is a work to be done. Definitely you are also helping to your family members while there is a work at your home to be done. After having his tea, grandfather called Rajul and said, "A family is a social institution which the child becomes into contact with first." So from here students, the blank is there that which is the first institute or social institute, then your answer is a family is a social institute, or you can say a first social institute which the child comes into contact with first, और जिससे जो भी एक चाइल्ड है वो फर्स्ट कांटेक्ट में आता है. यू नो वेरी वेल कि अगर हम लोग छोटे हैं तो डायरेक्ट वी कैन नॉट गो टू स्कूल और डायरेक्ट वी कैन नॉट मीट द पीपल. सो डेफिनेटली वी कम टू कॉन्टैक्ट विथ आवर फैमिली फर्स्ट. सो वी कैन से अ फैमिली इज अ फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन विथ whom we contact with first. The child learns about society for the very first time from the family. Therefore, a family is called the school of culture and personality development. It's very important that why the family is called the school and culture and personality development. So, द चाइल्ड लर्नस अबाउट सोसाइटी. जो भी सोसाइटी के अंदर आजू बाजू में है, हमें कैसे बिहेव करना है, क्या बिहेव करना है, वो सबसे पहले मीन्स वेरी फर्स्ट टाइम वो सबसे पहले कहाँ से लर्न करता है, तो फैमिली में से लर्न करता है. एंड दैट्स वाई फैमिली इज़ कॉल्ड द स्कूल ऑफ कल्चर. फैमिली को हम क्या बोलेंगे, अ स्कूल ऑफ कल्चर, जहाँ से हम मोरल्स सीखेंगे, जहाँ से हम मैनर्स सीखेंगे, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. और हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, हाउ टू बिहेव, एंड एवरी मैनर्स दैट आर वेरी यूजफुल, दैट वेरी फर्स्ट टाइम वी all are learning from our family, and that's why the family is called the school of culture and personality development. It is the smallest unit of society. From here also the question is there that which is known as the smallest unit of society. So the smallest unit of society is our family, means we can say a family is known as a smallest unit of a society.
अ फैमिली ऑल्सो टीचेस अस दैट वी आर म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे के साथ कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिपेंडेड रहे, वो भी हमें कौन सिखाता है, हमारा फैमिली ही सिखाता है. ईच एंड एवरी मेम्बर ऑफ द फैमिली ought टू हेल्प टू ईच अदर एंड डेफिनेटली हर एक फैमिली मेम्बर एक दूसरों को हेल्प करने के लिए बने हैं. यू नो वेरी वेल, इफ़ you have any problem, you have any queries, doubts, so your mama make lunch box for you, your father, means everybody, each and every family member help to each other. Society is based on the principle of cooperation and it begins with the family. Now our society is dependent on the principle मतलब एक सिद्धांत के ऊपर, एक रूल के ऊपर डिपेंडेड. वो कौन सा है, कोऑपरेशन, मतलब हाउ टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, हाउ टू म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर. तो वो प्रिंसिपल से पूरी सोसाइटी बनी है और वो कौन हमें सिखाता है, तो इट बिगिंस विथ फैमिली. वो सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, फर्स्ट टाइम फैमिली से सीखते हैं. फैमिली के बाद अगर आएगा तो दैट इज़ द रोल ऑफ द स्कूल. ओके, बट फर्स्ट we learn all the things from our home or from our family. That's why our family is considered the smallest unit of the society, and even we can say the family is also known as the school of culture and personality development. There is always a mutual impact made by the ideas and attitudes of family members. Now you know very well that we are sharing our ideas, our attitudes, whatever the decisions we are taking. So first we are discussing with the family members and there is a mutual understanding. So that happens in family only. We learn etiquette and manners from the family, मतलब good manners. So from where we are learning all that etiquettes and manners, so we are learning from our family. The ideology of a family helps in making decisions which may or may not be acceptable. मतलब बहुत सारे डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्टेबल है या नहीं है. That also will learn, फैमिली हेल्प टू लर्न ऑल द थिंग्स. बिकॉज समटाइम्स आपके घर में भी बनता होगा कि मम्मा बोलती है कि ये करना है, पापा बोलते हैं ये करना है, तो कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सारे डिसीजंस की जो आइडियोलॉजी है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम कहाँ से सीखते हैं. वी लर्न ऑल द थिंग्स from our family. The family and school are institutions which shape us into becoming the better citizens and living a better life. So two things are very important in your life and in the life of everybody. First, that is the family, and second one is the school. Both are institutions and both are very helpful to shape our personality, how to make good citizen, what are the responsibilities, how we can prove ourselves outside, हम कैसे हम अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में प्रेजेंट करें. वो सारी चीज़ें हमें कहाँ सीखने को मिलती है, फैमिली में से सीखने के लिए मिलती हैं, एंड सेकेंड वन फ्रॉम द स्कूल. When a child is born into a family, he is nourished by his parents. Nourished करना मतलब to take care, to teach them manners. तो जब चाइल्ड बॉर्न होते हैं फैमिली में, तो जो डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डेफिनेटली द पेरेंट्स आर टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आफ्टर some time he establishes a relationship with the neighbors, then he goes to school. Definitely जब घर में एक छोटा बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो डायरेक्ट तो नेबर्स में नहीं जाएगा ना, वो स्कूल पे भी नहीं जाएगा. तो फर्स्ट ही कनेक्ट्स विद द फैमिली, और एज टाइम पास्ड तो वो किसके साथ, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो वो नेबर मतलब आजू बाजू में जाएगा, फिर उससे थोड़ी एज इंक्रीज होगी, देन ही गोज टू द स्कूल. दैट इज़ द रूल एंड वी ऑल आर फॉलोइंग द सेम रूल. As he grows constantly, imitates his elders till he became an adult. See, it is very important. As he grows, जैसे वो grown up होता है, constantly imitates, वो सबको imitate करेगा, copy करेगा. क्या? So elders till he become an adult, जब तक वो adult नहीं बन जाता, तब तक वो जो है वो each and everything जो है वो observe करके imitate करेगा. आपके घर में भी अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आपने देखा होगा कि वो आपको कॉपी करते हैं. अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूल पे जाते हैं, तो वो टीचर्स कैसे बोलते हैं,
कैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं, कैसे फैमिली मेम्बर, जो स्कूल की बात है वो फैमिलीज़ को बताएंगे और जो फैमिलीज़ की बात है वो स्कूल में भी बताएंगे। मीन्स दे आर इमिटेट ऑल द थिंग्स, दे आर लर्निंग ऑल द थिंग्स। कहाँ से? एल्डर्स छोटे से एडल्ट नहीं बन जाते तब तक दे आर ग्रोज एंड इमिटेड ऑल द थिंग्स। Meanwhile, he comes to the contact with many social institutions which help to mold and develop his personality. And meanwhile, मतलब between that, born babies हुआ तब से लेके एडल्ट बना तब तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के कांटेक्ट में आएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ द फैमिली, देन आफ्टर नेबर्स एंड देन आफ्टर स्कूल जाएगा। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस वी कैन से, तो उसके कांटेक्ट में आएगा एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस जो वहाँ से जो भी सीखेगा इट बिकेम वेरी हेल्पफुल टू मोल्ड, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है उसको उस तरह के से बनाने के लिए वो पर्सनालिटी ऐसे डेवलप करेगा। इफ़ अ चाइल्ड इज गिवन द opportunity to think and take decisions freely, he will become a good citizen. किसी के आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजंस एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल इन ऑल द फैमिलीज एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी, अगर एक बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी दे तो वो बहुत कुछ कर सकता है एंड इवन ही बिकेम अ गुड सिटीजन। बिकॉज सी, अगर आपके घर में कोई है जिसको साइंस फैकल्टी में जाना है बट योर पेरेंट्स आर सेइंग कि कॉमर्स फैकल्टी में जाना है, तो उसको क्या है कि खुद से डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता है। कभी कभी आपके साथ भी बनता होगा कि आपको खाना है चॉकलेट, मम्मा बोलती है चॉकलेट नहीं खानी है, वेफर खाओ, तो यू कैन नॉट गेट दैट opportunity to take the decision. But if we are giving the opportunity to child, so definitely he became a good citizen in future. Later on, when he becomes an adult, he will think independently in the social and political spheres of life and work according to the understanding of such situations. And if we are giving the opportunity to that child from the beginning, then at the time when he became adult, so definitely he will think deeply and independently, and whenever there is any problem like social problem or political problem, then definitely he think from his mind and take the decisions at his own, and even he try to understand the situation very nicely. Means कहने का मतलब वो है कि अगर हम जो बच्चों को फ्रीली डिसीजंस लेने के लिए फ्रीडम दे तो वो अच्छे से सिटीज़न बन सकते हैं, और इवन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई कोई भी सोशल या पॉलिटिकल, तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन आफ्टर दे टेक द डिसीजन इन द क्रिटिकल सिचुएशंस। नाउ हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो राजुल है वो अपने फैमिली को हेल्प कर रहा है। सो राजुल आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर, दादाजी, शुड द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय ईच पर्सन बिफोर हिज फैमिली अलोन? So definitely that Rajul is a very like curious and he wants to know so many things. So he asked the question to his grandfather that whatever the duties we are performing, so it is only for the family, मतलब हमारी जो भी ड्यूटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो खाली फैमिलीज़ के लिए ही है या किसी और के लिए भी है? So दादाजी said not at all. So it is not only for our family, but were born into our family and will remain a member of the family. Definitely we are the member of our family, so definitely our duties are there for our family. It is a duty for your mother and father to nourish and protect you, मतलब to take care of yours, to protect you, to help you. That is the duty of your father and mother, means that is the duty of a parents towards his child. Similarly, your first duty is to protect your family. Definitely, if your parents are doing so many things for you, so what is your responsibility, first responsibility or first duty for your family? That is to respect your family, to give the respect, आपके family को respect देना, that is your first duty or that is your first responsibility. Follow the customs and tradition and observe all the rules and regulations. Whatever the rules are there in your family, whatever the traditions are there and regulations, rules, regulations are there, so you have to follow that rules and regulations that are your duty
towards your family. So from here the question is there that what is the responsibility of a child towards his family. तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि फैमिली मेम्बर को रिस्पेक्ट करना, फिर जो भी कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसको फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चाइल्ड और एज अ पर्सन हमारी है टूवर्ड्स अवर फैमिली, हमारे फैमिली के लिए। तो ये तो बात हुई फैमिली की। अब देखते हैं, अलोंग विद बीइंग अ मेंबर ऑफ द फैमिली यू आर ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल टूवर्ड्स विच यू हैव ड्यूटीज टू परफॉर्म। सो फैमिली के बाद यू आर द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एंड दैट इज योर ड्यूटी to follow some of the like rules and regulations also which are there in the school. So that is your duty to perform that things. Maintaining, now which duties we have to perform towards our school, that is also the question. So maintaining good relations with your co-students, मतलब आपकी जो फ्रेंड्स है, आपके जो को स्टूडेंट्स है, उसके साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, गुड रिलेशन, किसी के साथ झगड़ना नहीं है। सो दैट इज़ अ गुड रिलेशन आपको बनाए रखने हैं को स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर स्कूल। हैविंग अ हेल्दी एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल, आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए टूवर्ड्स योर स्कूल आर सम ऑफ देम। स्कूल मेंबर्स, नॉट ओनली दैट कि गुड रिलेशन ही चाहिए, हेल्दी एटीट्यूड, जो स्कूल की प्रॉपर्टीज़ है उसको आप संभाल के यूज़ करो, उसको अच्छे से ध्यान रखो, वो सारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया हैज़ ड्यूटीज़ टू परफॉर्म टुवर्ड्स हिज विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, नेशन एंड वर्ल्ड एज अ सिटीज़न। ये तो बात हुई हमारी स्कूल की ड्यूटीज़ की और फैमिली की ड्यूटीज़ की, बट after all we all are Indians and that's why we have some of the duties that we have to perform for our village, for our taluka, for our district, for our nation, and not only for nation but being a human we have to perform our duties for the world also, and those who are following, they are the best citizens. Okay, so not only we have the responsibility towards our family but we have the responsibility towards our school, village, taluka, state, nation, and even for the world also. Here you have one diagram of like social relation. So first of all, that orange color shows that first institution that you are learning, you are being, that is your family. फैमिली से ऊपर आओगे देन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट शोन बाय द येलो कलर, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विलेज, मतलब विलेज के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विलेज से ऊपर जाओगे सो दैट इज़ तालुका, तो यू कैन सी हियर तालुका दिस अराउंड, देन आफ्टर तालुका से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। देन ऑन द टॉप, डिस्ट्रिक्ट के टॉप की बात करें तो स्टेट, सो यू कैन सी हियर द स्टेट, सो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर स्टेट ऑल्सो। देन आफ्टर कंट्री और नेशन, सो यू कैन सी इन द ब्लू कलर दैट इंडिकेट्स द कंट्री एंड नेशन, एंड सबसे ऊपर दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, दैट इज़ द वर्ल्ड। मीन्स छोटे से छोटे इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करके टूवर्ड्स द वर्ल्ड वी हैव आवर ओन ड्यूटी, वी हैव टू परफॉर्म the duties for each and every institution, and this diagram is important as far as exams are concerned. तो आपको ये diagram भी prepare करना है, be sure about that thing. So first of all, पहले से smallest से लेके हम लोग biggest की बात कर रहे हैं, so नीचे से ऊपर की हम लोग बात कर रहे हैं, समझ में आया? पहले कौन आएगा? फैमिली आएगा, then after village, then after तालुका, then after district, then after your state, then after your country or nation, and then after the world. Okay, so this diagram is very important, and you have to learn all the things in the order only from the smallest to biggest. Hope you understand, and if you have any doubt or query then type in the comment box. I will definitely give the answer and solve your doubts and problems. After listening to everything, his Dadaji told him Rajul joined his mother in the cleaning of a cupboard where he found a card on
वन ऑफ द सेल्व्स। ये सब दादा जी के साथ कन्वर्जेशन हो रहा है। देन आफ्टर जो राजुल है वो उसकी मम्मा को हेल्प करने के लिए जाता है। उसकी मम्मा जो है वो कपबोर्ड को क्लीन कर रही है, तो वो क्लीनिंग के लिए उसकी मदद करने के लिए जाता है। एट द सेम टाइम ही फाउंड अ कार्ड ऑन वन ऑफ द सेल्व्स। एक कार्ड है जो एक सेल्फ के ऊपर पड़ा है। He said, now definitely I already told to you that he was a very curious boy to know something and he wants to know something. So he said, he asked to his mother, what is his mummy? The mother replied, this is the voter identity card of your father. This card, voter identity card, later on in the next slide we will discuss that what is that. तो वो जो सेल्फ के ऊपर पड़ा है वो क्या है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। You come to know about the residential proof of the owner on the voter identity card too. अभी जो वो कार्ड है that is given by the central government, means we can say the government of India give this voter identity card to the citizen those who are belonging to India, मतलब Indian citizen को दिया जाता है। Now some of the terms and conditions are there that if you are above 18 years then you can have that voter identity card, and if you have voter identity card then you can go and vote in the election process. आपके घर में भी आपके पेरेंट्स जाते होंगे तो आपको पता ही है, but these are the things that you have to know. Okay, the voter identity card must be with the person as a document for voting. And when you are going for voting, आपको पता है इलेक्शंस होते हैं, तो जब आपको वोटिंग करनी होगी वो इलेक्शन में, दैट इज़ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, मतलब वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, हमारा रेसिडेंशियल प्रूफ, मतलब हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा रेसिडेंट एड्रेस क्या है, वो जो ऑनर है मतलब जिसका फ़ोटो होगा उसका एड्रेस वहाँ पे लिखा होगा। In India, each and every citizen who is 18 years and above has a right to vote. It is very important that at what age you are able to give the vote. So at the age of 18 or above, you have the right to vote. मतलब आपका right है, आपका अधिकार है, आपका हक है कि आप वोटिंग कर सकते हो, and that card is given by Indian government, और आपके पास वो कार्ड है that shows that you are the citizen of India. The voter identity card is an authentic मतलब proved document of being a citizenship. एक authentic document है, proof document है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट किसी को दिखाओगे, वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे, तो nobody can say कि आप इंडियन सिटीज़न नहीं हो, क्योंकि अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तब भी गवर्नमेंट आपको वो जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है वो देगी। मीन्स इट्स अ वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वी कैन से। नाउ इन दिस स्लाइड you have a photograph of voter identity card. So one card is there, one side and back side. So here it is written Bharat Chutni Panch, means Election Commission of India. And ओढ़क पत्र, ओढ़क मतलब identity and patra is written मतलब card. So that is a voter identity card. And who issued that? तो Election Commission of India. Now see here it is written elector's name मतलब मतदानु नाम, elector मतलब the person जो वोट करने के लिए जाएगा, उसका नेम लिखा है। here it is written पंड्या नीलेश कुमार। तो जो भी ऑनर है, ये ऑनर का फोटो है। अभी ये ऑनर है, सपोज यू आर द ऑनर ऑफ दिस कार्ड, तो आपका फोटो यहाँ पे होगा। ओके, देन आफ्टर इट इज मेंशन फादर्स नेम, तो फादर्स नेम इज रिटन हियर नटवर लाल। देन योर सेक्स मतलब जाति, तो पुरुष मतलब मेल इज रिटन हियर। देन डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो मेंशन हियर, दैट इज द फ्रंट पेज। देन आफ्टर if you are talking तो बैक साइड, तो here it is written address. see you can see the address here, तो एड्रेस यहाँ पे लिखा है ग्राम लक्ष्मी सोसाइटी उत्तरायण 1 सूरत। then after pin code is written तालुका सूरत city and district सूरत. so the whole address, perfect address is written over here. then after date of issuing, जब डेट कौन सी डेट को आपको वो कार्ड इशू किया गया वो लिखा है, and the sign of election commissioner की जो साइन है वो है। then after some of the instructions are also there, so we have to follow that instruction, मतलब in which condition you are using that and how it is useful, so everything is written over there. even if you want to see your the live, then मतलब live voter identity card, then you request to your parents. I'm not telling that order your parents, I'm telling request your parents, they will show you.
After seeing the voter identity card, Rajul was curious to know about the meaning of the term citizen and citizenship. भी उसके दादाजी ने बोला, मम्मा ने बोला सॉरी, कि ये जो कार्ड है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो उसके नाउ ही वॉज वेरी क्यूरियस और उसको भी जानना है कि सिटीज़न का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है. So he then asked his grandfather for an explanation of the same, and then after he request करता है, वो किसको रिक्वेस्ट करता है, ग्रैंडफादर को, कि प्लीज़ इन्फॉर्म मी, प्लीज़ टीच मी एंड प्लीज़ इन्फॉर्म मी एंड प्लीज़ गिव मी द explanation that what is citizen and what is citizenship. His Dadaji told him in the detail that the word citizen is frequently used in democracy and added that it is often used in politics by the law, the constitution and the speeches of the political leader. उसके दादाजी ने बोला कि ये जो वर्ड है फ्रीक्वेंटली मतलब जनरली वो यूज़ होता है कहाँ पे, डेमोक्रेसी. नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ डेमोक्रेसी बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. मतलब जहाँ पे लोग होते हैं वो ही इलेक्ट करते हैं उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को और वो ही रूल करते हैं, सो दैट इज़ डेमोक्रेसी. तो वो वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है. फिर पॉलिटिक्स में भी वो वर्ड यूज़ होता है, कभी कभी लॉ में भी यूज़ होता है. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा बंधारण है उसमें भी यूज़ होता है. संविधान जिसको हम प्योर हिंदी में बोले तो संविधान गुजराती वर्ड है, सॉरी फॉर दैट. एंड स्पीचेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, और जो पॉलिटिकल की लीडर्स की जो स्पीचेस है वहाँ पे भी हम लोग ये जो वर्ड है, कौन से टू वर्ड्स, सिटीजन एंड सिटीजनशिप, या यूज टू लिसन और वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन इन दैट थिंग. He knew that Rajul would want to know more about the term citizen. अभी दादाजी को तो समझ में आ गया कि उसको कुछ सीखना है, इसीलिए वो इतनी इंक्वायरी कर रहा है. Now simple meaning की हम लोग बात करें that what is citizen? So a person living in the village, city or town is called citizen. That is a very limited meaning. See, what is the limited meaning? So a person living in village, city or town is called citizen. जो पर्सन कहाँ पे रहता है, विलेज में रहता है, सिटी में रहता है या टाउन में रहता है, उसको वो एरिया का हम क्या बोलेंगे, सिटीजन बोलेंगे. बट दैट इज़ अ लिमिटेड मीनिंग जनरली स्पीकिंग. बट इफ़ वी आर टॉकिंग वाइडली, तो अ पर्सन हु लीगली बिलोंग, मतलब लीगली आप बिलोंग करते हो टू अ कंट्री, मतलब ऑफिशियली यू आर बिलोंगिंग टू एनी कंट्री and has a right and protection of that country is a citizen of that country. If you are belonging officially और लीगली आप लोग कोई कंट्री में रहते हो, आपके पास राइट है कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, कंट्री को हेल्प करने का, कंट्री को प्रोटेक्ट करने का, तो आप लोग जो है वो कंट्री के क्या बनोगे, सिटीजन बनोगे. सो दैट इज़ द डेफिनेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन. An Indian citizen has a deep love for his country and takes pride in the fact that he is an Indian. जो भी इंडियन, नॉट ओनली इंडियन, जो भी कंट्री के अपने अपने सिटीजन्स होते हैं, वो अपनी जो कंट्री होती है उसके प्रति हमें क्या होता है, डीप लव होता है. एंड इवन प्राइड मतलब हमें प्राउड भी होता है. He cooperates with other citizens and serves the nation. In the return, the government gives him a right to enjoy. हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स आवर कंट्री, तो वो हम लोग परफॉर्म करते हैं. सपोज मैंने अभी आपको बोला कि कंट्री को क्लीन रखनी है, दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके सामने हमें राइट्स दिए जाते हैं. कौन कौन से राइट्स होते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब व्हेन यू आर गोइंग इन द अपर स्टैंडर्ड यू विल लर्न इन द डिटेल. तो हमें कोई राइट्स मिलते हैं, सपोज वोटिंग का राइट है, कहीं पे भी रहने का राइट है, कोई भी रीजन को फॉलो करने का राइट है, तो वो राइट हमें कौन देता है, गवर्नमेंट देती है. The Indian government takes care of the life and property of all non-resident Indian as well. ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में रहते हैं उसकी ही केयर गवर्नमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट, बट दोज हु आर नॉट रेसिडेंट इंडियंस, मतलब जो फॉरेन के होते हैं, एनआरआईज होते हैं, उसकी भी केयर हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेती है. An Indian citizen never cause harm to the country and nation, or as an ideal citizen, it is the responsibility that never harm our country. हमारी कंट्री को कभी भी हमें नुकसान नहीं करना है. वो एज एन आइडियल सिटीज़न मतलब अच्छे से श्रेष्ठ सिटीज़न होने के नाते हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ वी विल लर्न द न्यू टॉपिक दैट इज सिटीजनशिप.
एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया इज़ नॉट सिटीज़न। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम जो सारे रहते इंडिया में वो सारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो नो, जो रहते भले हैं पर उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है दैट वी हैव टू फॉलो। आउट ऑफ दीज पीपल मोस्ट आर इंडियंस एंड सम आर फॉरेनर्स। तो रहने वाले जो लोग हैं तो वो क्या है कि पीपल जो है तो मोस्ट ऑफ तो इंडियंस ही है जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, पर उसमें से जो होते हैं वो आधे क्या है, फॉरेनर्स है एंड एनआरआईज है। तो आधे फॉरेनर्स भी है और एनआरआईज भी है। मैनी पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड स्टे फॉर सम टाइम, लाइक टेम्पररी स्टे। मतलब सपोज कोई अमेरिकन है तो वो क्या करेगा, इंडिया में आएगा यहाँ पे रहने के लिए, बट नॉट परमानेंटली, टेम्पररी, मतलब कोई थोड़े टाइम के लिए वो यहाँ पे स्टे करने के लिए आएगा, रहने के लिए आएगा। दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट। और अगर आप लोग इंडियन सिटीजन हो तो ही आपके पास वोटिंग करने का राइट है। जो फॉरेनर्स इंडिया में टेम्पररी स्टे करने के लिए आते हैं, दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट। तो उन लोगों को राइट करने का कोई वोट करने का कोई राइट नहीं है। इवन दे कैन नॉट पार्टिसिपेट एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। वो एज अ इलेक्शन आपको पता होगा तो वो कैंडिडेट भी नहीं बन सकते, हेल्ड गवर्नमेंट पोस्ट और एन्जॉय देयर राइट्स। वो गवर्नमेंट पोस्ट पे भी नहीं रह सकते, मतलब कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट की बात करें हम लोग, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हो, पीएम हो, सीएम हो, तो उसको भी हम नहीं बना सकते। एंड जो राइट हमें गवर्नमेंट देती है वो राइट वो लोग एन्जॉय नहीं कर सकते। कौन? जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है, मतलब जो फॉरेनर्स है जो टेम्पररी स्टे करने के लिए आते हैं, भले वो इंडिया में आए हैं बट वो परमानेंट स्टे करने वाले नहीं है, टेम्पररी स्टे करने वाले हैं, इसीलिए उन लोगों को वो राइट्स नहीं दिया जाता है। लेटर ऑन वी कम टू नो कि जो फॉरेनर्स है हाउ दे कैन ऑल्सो बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी हम देखेंगे। देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड इंडियन सिटीजन, क्योंकि वो लोग इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं रह सकते, उन लोगों को कोई राइट ही नहीं है, इसीलिए हम लोग उन लोगों को इंडियन सिटीजन्स नहीं बोलेंगे। दे आर सिटीजन्स ऑफ देयर ओन कंट्री। सपोज वो अमेरिका से आया है तो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। दे आर मतलब वो जो फॉरेनर जो अमेरिका से आया है वो कौन सी कंट्री का सिटीजन है, तो वो अमेरिका का सिटीजन है। For example, if you are talking, तो people from Europe, USA, Russia, Japan, etc. came to India. कौन कौन से पर्पस से आते हैं, तो यहाँ पे तो खाली थोड़ी कंट्रीज़ के नेम दिए हैं कि यूरोप से आने वाले, यूएसए से आने वाले, रसिया, जापान। सो दे कम टू इंडिया टू स्टडी, टू विजिट और टू वर्क इन वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। वो लोग क्यों अपने कंट्री से इंडिया में आते हैं, तो सम पर्पज आर लाइक टू स्टडी, टू विजिट मतलब वो विजिटिंग पर्पज से आएंगे, या तो कोई इंडस्ट्री होगी उसमें वर्क करने के लिए भी आएंगे। एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टे इन इंडिया बट आर नॉट इंडियन सिटीजन। नाउ एम्बेसडर जो होते हैं वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ इंडिया, तो जो न्यू दिल्ली में होंगे वो अलग अलग कंट्रीज़ की जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों की ऑफिसेज होंगी, तो वो होंगे एम्बेसडर। तो अलग अलग कंट्री के जो एम्बेसडर्स है, रशिया के होंगे, यूएसए के होंगे, जापान के होंगे, चीन के होंगे, वो सारे इंडिया में रहते हैं बट दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स। दे आर स्टेइंग हियर, स्टेइंग इन इंडिया विथ सम ऑफ द पर्पस कि जो यहाँ के जो सिटीजन्स है वहाँ पे जाना है या वहाँ के सिटीजन को यहाँ आना है, वो पर्पस से वो लोग यहाँ पे रहते हैं एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन्स। Citizenship means to stay permanently in a country to enjoy the rights given by the state to perform the duties entrusted to a person. See, it is very important. Citizenship means क्या? To stay permanently. I'm not talking about temporary. See here the word permanently. आपको रहना है, पर कैसे? Permanently रहना है in a country, कोई भी कंट्री में, to enjoy the rights given by the state. आपको जो भी स्टेट या तो गवर्नमेंट या तो कंट्री जो राइट दे रही है उसको एन्जॉय करने के लिए आपको कैसे रहना पड़ेगा, तो परमानेंटली रहना पड़ेगा। टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ एंट्रस्टेड टू अ पर्सन। नॉट ओनली दैट, अगर आपको राइट दिए जा रहे हैं एन्जॉय करने के लिए तो उसके साथ आपकी ड्यूटीज़ भी है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड। सो वन साइड आर ड्यूटीज़ एंड वन साइड आवर राइट्स। ओके, अ पर्सन गेट्स or loses a citizenship according to the rules prescribed in the constitution of India। और ऐसा नहीं है कि एक बार हम बन गए इंडिया के सिटीजन
तो फॉर एवर वी आर इंडियन सिटीजन. समटाइम्स व्हाट हैपन दैट समटाइम्स इफ़ वी आर डूइंग सम रॉन्ग डीड्स टवर्ड्स आवर कंट्री, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंडियन सिटीजनशिप है वो हम लूज़ कर देंगे. According to the Constitution, single citizenship is given by the union government to all the citizens of India. Union government मतलब Indian government. Okay, so according to the Indian Constitution, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमें एक सिंगल सिटीजनशिप देंगे. आई मीन दैट कि वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सपोज वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इज गिविंग द राइट. वी आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो गुजरात गवर्नमेंट हमें गुजरात की सिटीजनशिप नहीं देगा. ओनली जो इंडियन गवर्नमेंट है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट है, वो हमें एक ही सिटीजनशिप देंगे. सो गुजरात गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट से हमें कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. Citizen may belong to Gujarat or Maharashtra, but he did not entitled to get the dual citizenship of the state and the union. Means we have only one citizenship, that is the Indian citizenship. If you are living in Gujarat, तो आप गुजरात की सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी, और यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की भी सिटीजनशिप आपको मिलेगी नहीं. आफ्टर ऑल कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं, वी आर ऑल इंडियन, तो हमें एक ही यूनियन गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी, दैट इज़ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ही गेट्स ओनली वन सिटीजनशिप एंड दैट इज़ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. उसको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, और वो कौन सी सिटीजनशिप होगी, इंडिया की सिटीजनशिप होगी. नाउ आपके माइंड में अभी तक क्वेश्चन होगा कि मैम कैसे हम इंडिया की सिटीजनशिप ले, तो हाउ टू गेट एन इंडियन सिटीजनशिप. So that is also very important question. So there are 4 ways of getting Indian citizenship. कितने ways है? So 4 ways are there. Which are there? So by birth. If by birth you are like आपका birth है वो इंडिया में हुआ, तो by birth you are Indian citizen. By law. लॉ से भी हम लोग बन सकते हैं. बाई रजिस्ट्रेशन, आप कोई अनदर कंट्री में भले रह रहे हो, पर यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आफ्टर समटाइम्स यू कैन बी अ इंडियन सिटीजन. Then you can be an Indian citizen by being a resident or a definite period time. Suppose आपको जो यहाँ पे आप कहीं पे तो परमानेंट स्टे करो, या तो जो पीरियड आपको दिया गया है टाइम पीरियड 7 years. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर दैट टाइम पीरियड आपका है 7 years. तो 7 years तक आप लोग दूसरे कंट्री से इंडिया में स्टे करोगे, तो यू आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अ पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया गेट्स इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली. और जो पर्सन का बॉर्न इंडिया में हुआ है, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जो है वो उसको कौन सी सिटीजनशिप मिलेगी, इंडियन सिटीजनशिप. अ चाइल्ड हु इज़ बॉर्न इन द फॉरेन कंट्री बट हैज़ इंडियन पेरेंट्स हैज़ द राइट टू इंडियन सिटीजनशिप. सपोज आपके जो पेरेंट्स है वो इंडिया के हैं, पर आफ्टर समटाइम्स वो यहाँ पे ही स्टे कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ बिजनेस पर्पस और कोई दूसरे पर्पस से वो फॉरेन कंट्री में सेटल होते हैं, और कोई चाइल्ड का बॉर्न वहाँ पे होता है, तो वो चाइल्ड के पास राइट है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो क्या है, इंडियन है, तो इंडियन सिटीजनशिप उसको भी मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल श्री शेख एंड हिज वाइफ बोथ आर इंडियंस एंड आर स्टेइंग इन यूएस. वो दोनों इंडिया के हैं, पर कहाँ पे रह रहे हैं, यूएस में. नदीम देयर सन इज़ बॉर्न, और वहाँ पे फॉरेन में यूएस में उनका एक सन होता है एंड द नेम इज़ नदीम. श्री शेख रजिस्टर्ड द नेम ऑफ नदीम इन द ऑफिस ऑफ द इंडियन एम्बेसडर. और यूएस में जहाँ यूएस में इंडियन एम्बेसडर की ऑफिस है, वहाँ पे उनका नेम मतलब नदीम का नेम वो रजिस्टर करवाते हैं. Thus नदीम गेट्स द सिटीजनशिप ऑफ 2 countries. क्योंकि वो अभी यूएस में है तो उसको यूएस की भी मिलेगी, और वो उसके पेरेंट्स है वो इंडिया को बिलोंग करते हैं तो इंडिया की भी मिलेगी, बट परमानेंटली नहीं. सी व्हाट इज रिटन. However, when Nadim becomes an adult, he has the citizenship of any one country of his choice. मतलब एडल्ट हो जाने के बाद if he wants to be a citizen of India, then he can. And if he wants to be a citizen of US, then he can. So वो डिसीजन लेंगे कि उसको कौन सी कंट्री का सिटीजन बनना है. Being born to Indian parent, it is very natural way to acquiring Indian citizenship. डेफिनेटली उसके जो पेरेंट्स है वो इंडियन है, तो
तो वो क्या बन जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। इवन फॉरेनर्स कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय अप्लाइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्टे। बहुत लॉन्ग टाइम तक वो रहेंगे, गवर्नमेंट को पहले आपको अप्लाई करना है इंडियन गवर्नमेंट को, और आप जो पीरियड उन लोगों ने बताया है वो पीरियड तक लॉन्ग स्टे आप लोग करोगे तो फॉरेन कंट्री के भी इंडिया के क्या बन सकते हैं, सिटीज़न बन सकते हैं। हावेवर देयर आर सम कंडीशन, पर उसकी भी कंडीशंस है। विच कंडीशंस आर देयर? टू सरेंडर द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब सपोज आई एम अ फॉरेनर और मुझे इंडिया का सिटीज़न बनना है, तो फॉरेन कंट्री मुझे इंडिया की जो मेरी फॉरेन कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो सरेंडर करनी पड़ेगी, मतलब वो लौटानी पड़ेगी वहाँ पे। ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोर देन 5 years। और आपको मतलब मुझे अगर बनना है तो मुझे कितना टाइम तक रहना पड़ेगा, मोर देन 5 years मुझे यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। द इंटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी वन ऑफ द परमानेंट रेसिडेंट। और जब व्हेन यू आर अप्लाइंग देयर तो आपका जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंस का होना चाहिए। तो एज अ फॉरेनर हो तो भी आप लोग इंडिया के सिटीज़न है वो बन सकते हो। However, for a foreigner marries an Indian citizen, he or she then becomes an Indian citizen। कोई फॉरेन में रहने वाला पर्सन है तो वो अगर यहाँ के इंडियन के साथ मैरिज करेंगे तो वो क्या बन सकते हैं, इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं। वन मोर कंडीशन, इफ़ एन इंडियन सिटीजन कमिट्स द सीरियस क्राइम ऑफ बेट्रायल, मतलब देश द्रोह के हम कोई काम करेंगे, हम टेररिस्ट बन जाएंगे, देश को हार्म करेंगे, देन ही लूजेज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो वो कंडीशन में उसकी जो सिटीजनशिप है वो क्या कर लेगी, गवर्नमेंट हमारे पास से ले लेगी। सो दीज ऑल आर द कंडीशन। Now Rajul said, Dadaji, I have got lot of information about citizen and citizenship from you which I will pass to my friends। तो अभी उसके पास सारी इनफ इंफॉर्मेशन आ गई है and he give the promise to his Dadaji that definitely he will share this detail with his friend। So in this chapter we have learned about citizenship, how we can get the citizenship, what are the responsibility as a citizen and everything। I hope students that it is clear in your mind। Still you have any doubt, then you write in comment box without any hesitation। I will definitely try to solve your queries, and if you like the video then please like it and please do the work at your home, go through the video and write your own notes। Thank you।